جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر طرح کی حمد و ثنا عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ کی بعثت امت اسلام پر، سارے انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کی راہ ہم سب کو واضح کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توحید کی معرفت دی، اور اس کی شریعت کی توضیح اور شریعت کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت یا آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کی بعثت، ان سب کی بعثت کا مقصد واضح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اور انبیاء اور رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں کے لیے اسوہ قرار دیا، اور ان کی اتباع کو اقوام پر فرض کیا گیا ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجا جاتا ہے قوموں میں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو اقوام تھی، ایک فترے کے بعد، ایک مدت ہونے کے بعد کسی نبی کو ان میں بھیجا جاتا، رسول کو ان میں بھیجا جاتا، اور لوگ ان کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے، اور وہی نجات کا راستہ تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے درمیان جو رسول بھیجے گئے وہ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، چاہے مرد ہو کہ عورت، ان سب پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی سنت کی پیروی کرے۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ کسی کے پاس ابھی باقی نہیں رہا،
اور کبھی ویسا وقت نہیں آئے گا کہ نبی اور رسول کو نہ بھیجا جائے گا، نبوت اور رسالت کسی کو دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ ان کی اپنی شریعت کو لاگو نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امت ہی میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کے لوگوں کی امامت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز ادا کریں گے۔ یہ وضاحت ہے کہ نبی اور رسول اب آنے والے نہیں ہیں اور کوئی نیا طریقہ امت میں آنے والا نہیں ہے۔ پہلا اور آخری طریقہ جو ہم سب کے لیے ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو عمل آپ نے خود اپنی زندگی میں کیا اور جو عمل آپ نے صحابہ کو سکھایا، آپ نے تعلیم دی، صحابہ نے آپ کے سامنے کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت ہیں اور ہم سب پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑے، اسے اختیار کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کو اختیار کیوں کرنا چاہیے؟ کیا یہ چیز ضروری اور فرض ہے؟ اگر کوئی آدمی اسے اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کے طریقے کو اختیار کرنا یہ مستحب یا بہتر چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عین واجب اور فرض چیز ہے۔ امت پر اس کو فرض کیا گیا ہے اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے حکم نہیں مانتا ہے اور آپ کا طریقہ آخری طریقہ نہیں مانتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے اللہ کے نبی فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم ہے، لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنا لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھاتا ہے، اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جب تک وہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنا لے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور جس چیز کا فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں کوئی حرج اور کوئی تنگی ان کے سینوں میں نہ ہو، ويسلموا تسلیما، اور اسے کھلے دل کے ساتھ قبول نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اتباع سنت، نبی کے طریقے پر چلنا یہ بہتر چیز نہیں ہے، بلکہ امت میں ہر شخص پر اس کو فرض کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ مان لے، اور آپ کے بات آنے کے بعد سینوں میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تین چیزوں کی شرط رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں۔ پہلی شرط رکھی کہ آپ کو حکم بنائے ہر اختلاف میں، فیما شجر بینہم، جو بھی اختلاف ہو، چاہے چھوٹا اختلاف ہو بڑا اختلاف ہو، حکم رسول کو بنانا ہوگا، یعنی آپ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہاں تک کہ ان کے سینوں میں تنگی نہ ہو۔ اگر سینے میں تنگی ہے، ناپسندیدگی ہے، تو دوسری شرط پوری نہیں ہوتی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور کھلے دل سے اسے قبول کرنے والے ہوں۔ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں وہ شخص حقیقت میں مومن ہے، اور تینوں کا تعلق رسول کی ذات سے ہے، آپ کی سنتوں سے ہے۔ آپ کو حکم بھی بنانا ہے اور آپ کے فیصلے کو قبول بھی کرنا ہے، اور سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مومن کے ایمان کا معیار ہے۔ حقیقی مومن، سچا مومن وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں رکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور آپ کی بات آنے کے بعد سینے میں اسے کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ وہ یسلم تسلیما، اور کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کر لے، چاہے وہ حدیث ہمارے عمل کے خلاف آئی ہو، میں اب تک کوئی کام کر رہا تھا، مجھے بعد میں اس کا علم ہوا ہو، یا پھر میں اس پر عمل کر رہا تھا، کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی بھی طرح سے میرے خاندان، میرے اصول، میرا گھرانہ، میرا شہر، میرا ملک اور میرا طریقہ اور مسلک کچھ بھی ہو، رسول کی بات آنے کے بعد اسے سب سے مقدم رکھنا، اور اس کے آنے کے بعد سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، یہ حقیقت میں مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔
हर इंसान सोचे, हर मुसलमान सोचे, क्या रसूल का दर्जा हमारी जिंदगी में ऐसा है कि आपकी शख्सियत ही के लिए इंसान को हर तरह का तासुब करना चाहिए, तासुब सिर्फ हक के लिए होना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, फिर आप किसी को मत देखिए, फिर आप किसी की मत सुनिए। ये तासुब और इस तरह से मजबूत होकर के अड़ जाना, ये सिर्फ रसूल के साथ होना चाहिए। ये चीज अल्लाह के नजदीक काबिल मदह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे पसंद करता है कि हर इख्तिलाफ में रसूल की जात को, आपकी सुन्नत को हकम बनाया जाए। तासुब है, लेकिन तासुब मसलक के लिए है। हमारे मसलक में जो है उसी को हम मानते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसके खिलाफ आ गया, उस सुन्नत की कोई अहमियत नहीं हमारे नजदीक। तासुब है, लेकिन अपने खानदान और कबीले के लिए रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, उनके नाराजगी को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, उनकी खुशी का मैं ख्याल करता हूँ। इंसान हर चीज के लिए तासुब करता है, लेकिन हकीकत में जिस तासुब को शरीयत पसंद करती है, जिसे हकीकी इत्तिबा कहा जाता है, कि रसूल के आने के बाद, आपकी सुन्नतों के बाद किसी और चीज की तरफ मोमिन को नहीं देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो, चाहे वो कोई भी अमल हो। ये जज्बा मोमिन का होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस में फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। आपने कहा तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद से, उसकी औलाद से और दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी आपने सबसे करीबी रिश्ता जो एक इंसान का होता है, अपने बाप से होता है, अपनी औलाद से होता है, और दीगर बाकी लोग आते हैं। आपने कहा जब तक अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और दुनिया के सारे लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन को इस जज्बे के साथ सुन्नत की इत्तिबा करनी है कि यही ऐन ईमान है और इसी को हम पर फर्ज किया गया है। और दूसरी बात यह है कि सुन्नत की इत्तिबा नहीं करना, सुन्नत को तर्क कर देना। अगर कोई सुन्नत के बारे में कहता है कि क्यों जरूरी उसकी इत्तिबा है, अगर सुन्नत को छोड़ा जाए तो फिर वहां पर फितने नाजिल होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब नाजिल होता है। कुरान मजीद कहता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, जो रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए, अन तुसीबहुम फितना, कि उन्हें फितना लाहिक हो जाएगा, फितनों में वो गिर जाएंगे रसूल की मुखालफत की वजह से, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब में वो मुब्तला कर दिए जाएंगे। वो लोग जो रसूल की मुखालफत करते हैं, आपकी सुन्नतों को छोड़ देते हैं, उन पर खौफ है कि वो फितने में दाखिल होगी। ग़ज़वा उहद का मंजर देखिए। ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात पर जो एक टीला है 50 सहाबा को मुतय्यन किया और आपने मना किया कि नीचे नहीं उतरना, यहां तक कि रसूल की तरफ से इजाजत हो। आपने कहा अगर तुम देखो कि हमें कत्ल भी किया जा रहा हो, इस जगह को नहीं छोड़ना। सहाबा ने देखा कि पहला हिस्सा मुसलमानों के हिस्से में आया, पहला जो हिस्सा था जंग का वो फतहयाब हो गया। सहाबा ने सोचा कि अब हम कामयाब हो गए और ये दौरान जंग का मामला है। उन्होंने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद करके वो टीले से नीचे उतर गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि टीले से नीचे नहीं उतरना, अपनी जगह पर कायम रहो। किसी तौर पर भी परिंदे अगर हमारे सरों को नोचे तब भी वहां से नहीं उतरना। लेकिन जो सहाबा मुतय्यन थे उन्होंने देखा कि मुशरिकीन भाग रहे पीठ फेर करके, उन्होंने समझा जंग खत्म हो गई, माले गनीमत को जमा कर लिया जाए। और जब वो नीचे उतरते हैं, उन पर आपने सरबराह मुतय्यन किया था, उन्होंने मना किया, इसके बावजूद वो नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने का नतीजा ये हुआ कि मुशरिकीन ने दोबारा पलट करके हमला कर दिया और उस हमले में मुतअद्दिद सहाबा इकराम शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई। कुरान कहता है ऐसा क्यों हुआ? कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये हमारा अपना अमल है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज को तय कर दिया है, उसकी मुखालफत की वजह से सहाबा पर कितनी सख्त आजमाइश आई। आप सोचिए, रसूल की एक बात, आपका एक जुमला इस कदर अहमियत वाला है। जब आपने कहा जगह नहीं छोड़ना, वो जगह नहीं छोड़ सकते। छोड़ने पर क्या हुआ? मुतअद्दिद सहाबा इकराम शहीद हो गए। और कुरान कहता है ये हमारे अपने अमाल की वजह से है। तो रसूल के एक जुमले का वो वजन है। तो जिंदगी
जिंदगी भर जो हम रसूल की मुखालफत करते हैं, सुन्नतों को छोड़ते हैं, किस कदर इंसान मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। आप सोचिए, एक जुमले की सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आजमाइश में उन्हें डाल दिया और सारे लोगों को ये पैगाम मिला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किस कदर जरूरी है। हालत जंग में हो या हालत अमन में हो, जब भी आप कोई बात इरशाद फरमाते हैं, हर सूरत उस बात को लाजमी तौर पर इख्तियार किया जाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और उसने अगर कहा कि मैं, मदीना वाला इंसान था, उसने कहा कि मैं एहराम बांधना चाहता हूँ हज के लिए, उम्रे के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से एहराम बांध करके निकलूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सुन्नत तो ये है कि तुम जुल्हुलैफा जो मीकात है वहां से तुम एहराम बांध करके जाओ। उसने कहा कि मैं रसूल की मस्जिद से एहराम बांधना चाहता हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अहले मदीना का मीकात जुल्हुलैफा है। तो उसने कहा, इन्नमा हिया अम्यालुन अज़ीदुहा, ये तो चंद मीलों की बात है, जुल्हुलैफा से चंद मील पहले से एहराम बांधूं तो क्या होगा उसकी वजह से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे लगता है अगर तुम रसूल की मस्जिद से एहराम बांधोगे, या तो अल्लाह तुम्हें फितने में डालेगा या तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। चंद मील पहले वो भी रसूल की मस्जिद से एहराम बांधना चाहता है। इमाम मालिक कहते, या तो तुम्हें अल्लाह फितने में डालेगा या दर्दनाक अजाब तुम पर नाजिल होगा। ऐसा क्यों कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने? क्योंकि सुन्नत रसूल यह है जुल्हुलैफा से एहराम बांधना, और कुरान कहता है जो रसूल की सुन्नत की मुखालफत करते हैं, अन तुसीबहुम फितना, या तो फितने में गिरते, आजमाइशों में गिरते हैं, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किए जाते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर तौर पर हम पर लाजिम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही एक रास्ता है उम्मत में इज्तिमाइयत के लिए, उम्मत में इत्तिफाक और इत्तिहाद के लिए। तौहीद और सुन्नत यही रास्ता है लोगों के दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद का। अल्लाह को छोड़कर जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो कभी एक नहीं हो सकते। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, जितने भी मुशरिकीन हैं, कुफ्फार हैं, कुरान कहता है तुम्हें देखने में लगता है वो एक है, जबकि उनके दिल एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो अंदर से बिखरे हुए हैं, हर एक का माबूद कोई और है, वो कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। बज़ाहिर दिखता है एक साथ वो खड़े हैं, वो कुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल अलग अलग हैं। शरीयतें कहती है जिस्म का इत्तिहाद नहीं, दिलों का इत्तिहाद जरूरी है, और वो इत्तिहाद सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर हो सकता है, रसूल की शख्सियत की बुनियाद पर हो सकता है। सारे मुसलमान अगर ये तय करते हैं इबादत सिर्फ अल्लाह के नबी की होगी, हमारे दरमियान इख्तिलाफ कभी नहीं होगा। सारे मुसलमान तय करें रसूल का तरीका सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका हम सब इख्तियार करेंगे, अपने इख्तिलाफात को उससे हल करेंगे। उम्मत का इत्तिहाद का यही एक रास्ता बाकी है। आप देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा उम्मत पे बहुत अइम्मा आए, बहुत सारे उलमा आए, आप उनकी बुनियादों पर उम्मत को कभी एक नहीं कर सकते। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अबू हनीफा रहमहुल्लाह को ज्यादा माना जाता है, अफ्रीका में इमाम मालिक रहमहुल्लाह को ज्यादा माना जाता है, और मिस्र वगैरह में इमाम शाफी रहमहुल्लाह को ज्यादा माना जाता है, और अरब ममालिक में इमाम अहमद बिन हम्बल को ज्यादा माना जाता है। ये तो ममालिक के दरमियान अलग अलग मामला है। हर मुल्क के अंदर किसी इमाम की पैरवी की जाती है, इत्तिबा की जाती है। सारे के सारे अपने अमल को सही करो, अपनी नमाज को सही करो, रोजे और ज़कात को सही करो, कैसे हो सकता है? इसलिए कि हर मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इम्मा के पीछे होती है। इत्तिहाद और इत्तिफाक का रास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता है, और रसूल की शख्सियत को अगर हम अपने लिए इत्तिहाद का मरकज बनाते हैं, दुनिया में वो कोई भी इंसान हो, आप उससे कहें रसूल के तरीके के मुताबिक अमल करो और आपके तरीके पर चलो, तो इससे बढ़कर इत्तिहाद का क्या रास्ता हो सकता है? इसीलिए कुरान और सुन्नत में किसी भी मुसलमान पर रसूल के अलावा किसी शख्सियत की इत्तिबा को फर्ज नहीं किया गया है। किसी आयत करीमा से साबित नहीं होता है, और किसी हदीस से साबित नहीं होता है कि उम्मतियों में से किसी उम्मती को खड़ा करके उसके पीछे चला जाए, और जो नहीं चलता वो गुनहगार है। किसी कुरान की आयत में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है। एक ही शख्सियत है जिनकी इत्तिबा को फर्ज किया गया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है। आपको तय किया गया है कि आपकी शख्सियत हर मुसलमान के लिए, दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान रहते हैं, रसूल की जिंदगी उनके लिए उस्वा है। आपकी सुन्नत
सुन्नत है उनके लिए काबिल इक्तदा है, रसूल की शख्सियत को दर्जा दिया गया है। उसके अलावा आपने कहा अलैकुम बिसुन्नती, मेरे सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और आपके अलावा दुनिया में किसी और का दर्जा नहीं है। सुन्नत की इत्तिबा क्यों करना चाहिए? ताकि हम सब के दिल एक हो, हमारा तरीका एक हो, हमारा मनहज एक हो, और उसका रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के सिवा कुछ नहीं है। बाकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और नाकाम हो रही है, और कयामत तक भी नाकाम होगी। जोड़ने की क्या क्या कोशिश की गई, कैसे कैसे कोशिश की गई। कुछ लोग तो ऐसे खड़े हुए, हम किसी फिरके को नहीं मानते, ये कहते कहते खुद वो फिरका बन गए और दूसरे फिरकों को गाली देने लगे। कोई रास्ता नहीं है। अगर हक के पीछे इंसान नहीं चलता है, वो बातिल के पीछे जाएगा ही जाएगा। अगर आपके पीछे आप रसूल को अपना इमाम नहीं मानते, फिर किसी ना किसी को आपको पीछे चलना होगा। इसलिए शरीयत कहती है सुन्नत की इत्तिबा, इससे हम सब के दिल एक हो सकते हैं, हमारा रास्ता एक हो सकता है, हमारा तरीका एक हो सकता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में हम रहते हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा कैसे करना चाहिए, शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी मुतअद्दिद किताबों में बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज को जिक्र किया। कहते हैं कि रसूल की इत्तिबा 6 चीजों से पूरी होती है। जो 6 चीजों में रसूल की इत्तिबा करता है, हकीकत में उसी ने रसूल की इत्तिबा की है, रसूल की पैरवी की है। 6 चीजों का ख्याल हर अमल के वक्त मोमिन को होना चाहिए। अगर इन 6 चीजों में मुताबत नहीं, या 6 में से कोई एक चीज भी वो छोड़ देता है, उसने रसूल की पैरवी नहीं की है। 6 चीजों की पैरवी। सबसे पहली चीज क्या है? सबब यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इबादत को जिस सबब से किया है, उसी इबादत को उस सबब से किया जाए। बाकी किसी काम को वो सबब बना कर ना किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकाअतैन, आपने का कोई मस्जिद में आता है उस वक्त तक ना बैठे जब तक 2 रकात नमाज नहीं पढ़ता है। आपने मस्जिद में आने को सबब करार दिया, आ गया तो 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए। यानी ये जो 2 रकात है उसका ताल्लुक मस्जिद में आने से है, आपने इसे सबब करार दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ये, जिसे आपने सबब बनाया है उसे ही आपको सबब बनाना है। उसके अलावा अपनी तरफ से कोई आदमी किसी को सबब बनाता है, बिदात का सबसे बड़ा दरवाजा यही है। कोई आदमी को 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाना चाहिए, खुशी का दिन है। ये कैसे तय किया हमने कि इस दिन हमें खुशी मनाना चाहिए? आपने 12 तारीख को सबब क्यों बनाया? सबब बनाया इसका मतलब आपने रसूल की इत्तिबा नहीं की। इत्तिबा यह है जिसे रसूल ने सबब बनाया है उसी को आप सबब बना सकते हैं। कोई आदमी ये कहता है कि मैं कब्रिस्तान में जाने के साथ वहां जाकर के इबादत करूंगा, मेरी इबादत ज्यादा जल्दी कबूल हो जाएगी, ज्यादा जल्दी कबूल होगी। रसूल ने कब्रिस्तान को उसके लिए सबब नहीं बनाया है। बिदात का बड़ा दरवाजा ये है, जिस चीज को शरीयत ने सबब और जरिया नहीं बनाया है उसे हम सबब और जरिया बनाते, उम्मत में बिदात फैल जाती है। आप सोचिए हमारे दरमियान कोई खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, खुशी के मौके पर अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि खुशी के मौके पर आप ये जिक्र कीजिए, परेशानी के मौके पर आप ये जिक्र कीजिए, अगर वो किताब सुन्नत में नहीं है वो बिदात है। आपने खुशी के मौके पर कैसे तय किया कि खुशी सबब है, आपको ये अमल करना चाहिए? आप परेशान हैं, आपको ये सूरत पढ़ना चाहिए, ये जिक्र करना चाहिए। जिसे शरीयत ने सबब बनाया है उसी को आप सबब बना सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी हाथ उठा करके दुआ करता है, अल्लाह उसके दुआ को रद्द नहीं करता है। आपने हाथ उठाने को सबब करार दिया, हाथ उठाओगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। अगर कोई आदमी कहता है नहीं, नबी के नाम का वसीला देने से भी दुआ कबूल होती है, आपने वसीले को सबब कैसे बनाया? रसूल ने तो हाथ उठाने को सबब बनाया है, लेकिन हमने वसीले को कैसे सबब बनाया? यानी जो भी काम किसी भी चीज के लिए हम सबब बनाते हैं और शरीयत ने तय नहीं किया है उसको, ये सबसे बड़ी बिदात की राह है। और इससे कहते हैं सबसे पहली चीज सबब में रसूल की इत्तिबा करनी चाहिए। जिसको आपने इबादत के लिए सबब बनाया उसी को आप सबब बना सकते हैं, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज कहते हैं जिन्स। शरीयत ने बाज़ इबादतों के लिए जिन्स को तय किया है, जैसे जानवर की कुर्बानी है, बकरीद के मौके पर बहीमतुल अनआम को तय किया गया है, ऊंट है, गाय है, भेड़ बकरी है, इन्हें तय किया गया है। हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं, जिस जिन्स को तय किया गया है उस जिन्स को आदमी नहीं बदल सकता है। उन जानवरों की कुर्बानी में हलाल जानवर ही सही आप दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसे तय कर दिया गया है। बाज बेवकूफों को देखा गया मक्का में, वो हवा में वुजू कर रहे हैं और कह रहे मक्के की हवा भी पाक कर देती है इंसान को। शरीयत इस्लामिया ने उसे
जिन्स नहीं बनाया है, वुजू होता है या तो पानी से या तो तयम्मुम से। अगर दोनों की ताकत इंसान में नहीं है, ना पानी है ना तयम्मुम करने के वो काबिल है, वो आदमी नियत कर ले तहारत की, उसके अलावा हवा से कोई तयम्मुम नहीं होता है। शरीयत ने तय कर दिया है जानवरों की कुर्बानी इन्हीं से कुर्बानी हो सकती है। आप उसमें मुर्गी जो हलाल है आप दाखिल नहीं कर सकते, कबूतर परिंदे उसमें दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत ने बहीमतुल अनआम को तय कर दिया है। इत्तिबा ये है जिन चीजों को तय किया गया है जिन्स इबादत के लिए उसमें आपकी पैरवी की जाए। और तीसरी बात कहते हैं कदर, मिकदार में शरीयत ने इबादत की क्वांटिटी भी तय की है, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है, मिकदार भी शरीयत में तय है। जोहर की नमाज 4 रकात है, 4 रकात को आप 5 रकात नहीं कर सकते, फजर की 2 है उसे 3 नहीं कर सकते, मगरिब की 3 है उसे 4 नहीं कर सकते। जितनी मिकदार शरीयत ने तय की है उस मिकदार में इजाफा नहीं किया जा सकता है। जो उसमें इजाफा करता है उसने शरीयत में बिदात को ईजाद किया और रसूल की इत्तिबा उसने नहीं की। शरीयत ने 2 ईदों को तय किया है, ये मिकदार है ईदों की, साल में 2 ईद आती है, 3 को ये उसे नहीं बना सकता, 4 को ये उसे नहीं बना सकता है, क्योंकि मिकदार को तय किया गया है। रमजान के 30 रोजे उसे 40 कोई नहीं कर सकता है। आशूरा का रोजा है, आदमी आशूरा के रोजे को 6 आशूरा के रोजे नहीं कर सकता है। जितनी मिकदार शरीयत में तय है उसी मिकदार को इख्तियार किया जाए, ये तीसरी चीज है जो रसूल की इत्तिबा करना चाहते हैं। और चौथी चीज है शरीयत इस्लामिया ने कैफियत को तय किया है। कैफियत का मतलब क्या है? कैफियत का मतलब यह है तरीका, कि जिस तरीके से रसूल ने इबादत की है उसी तरीके पर आपको इबादत करना है। अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। आपको याद है नमाज को कायम करता है, पहले रुकू करे फिर सजदा करे, फिर उसके बाद सजदे से फिर उठे क़ियाम करे, ये तरतीब सही है। लेकिन कोई आदमी पहले आकर सजदा करे बाद में वो क़ियाम में खड़ा हो, पहले सजदा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कैफियत नमाज की नहीं है। उस इबादत का तरीका तय किया गया है, उस तरीके में रद्दो बदल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई रद्दो बदल करता है वो इबादत नहीं है, उसे कबूल नहीं किया जाता है। कैफियत में रसूल की पैरवी जरूरी है। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। आपने शर्त रखी है कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। कुछ लोग ये कहे कि मेरे नमाज पढ़ने का तरीका ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसे ही रकात बांधते हैं। अगर आप उनसे कहें कि ठीक है आपके यहाँ रकात ऐसे बांधा जाता है, एक काम आप कर सकते हैं, आप क़ियाम से पहले ही सजदा कर लीजिए, पहले सजदा कीजिए बाद में क़ियाम कीजिए, फातिहा पढ़िए। कोई उसे नहीं कबूल करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना मालूम है कि पहले क़ियाम होगा बाद में रुकू बाद में सजदा है। इतनी कैफियत को तो आपने मान लिया, फिर बकिया तफसीलात को क्यों नहीं माना जाता है कि रसूल के तरीके के मुताबिक ही नमाज कबूल होती है। आपने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। और सही मुस्लिम की रिवायत है, हमरान जो कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके गुलाम है, वो कहते हैं हजरत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में एक मरतबा पानी मंगवाया और आपने वुजू किया, सामने लोगों के सामने आपने वुजू किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, मशहूर रिवायत है, वुजू करने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जैसे तुम लोगों ने मुझे वुजू करते हुए देखा ऐसे ही मैंने भी रसूल को देखा। आपने पानी मंगवाया और आपने हमारे सामने वुजू किया, और वुजू करने के बाद आपने बहुत बड़ी फजीलत बयान की, तहियतुल वुजू जिसे कहते हैं, वुजू के बाद 2 रकात नमाज, आपने बहुत बड़ी फजीलत बयान की। आपने कहा मन तवद्दा नहव वुज़ूई हाज़ा, आपने पहली शर्त रखी जो मेरी तरह से वुजू करता है जैसे मैंने आप वुजू किया, सुम्मा क़ाम फ़रका रकातैन, और फिर वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ता है, ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ़्सहु, और उन 2 रकात के पढ़ने के दरमियान अल्लाह से गाफिल नहीं होता, पूरी खुशू के साथ नमाज पढ़ता है। पहली शर्त आपने रखी जैसे मैंने वुजू किया वैसे वुजू करे। फिर आपने दूसरी शर्त रखी 2 रकात नमाज पढ़े। तीसरी शर्त आपने रखी उस नमाज में गाफिल ना हो, खुशू से नमाज पढ़े। 3 शर्तें अगर कोई पूरी करता है, आपने कहा अल्लाह सुब्हानहू गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन आपने वहां पर भी अपने तरीके को फर्ज करार दिया। आपने कहा मन तवज़्ज़ा, जो वुजू करे नहव वुज़ूई हाज़ा, जैसे अभी मैंने वुजू किया है। इससे उलमा कहते हैं रसूल के इत्तिबा चौथी चीज है, जिस तरह से आपने इबादत की है उसी तरह इबादत की जाएगी, उसी तरीके पर इबादत की जाएगी, चाहे वो वुजू हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो कोई भी अमल सालेह हो, रसूल के तरीके के मुताबिक ही
उस अमल को कबूल किया जाएगा। ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है ज़मान। ज़मान, शरीयत ने कुछ इबादतों को वक्त के साथ खास किया है, उस वक्त के साथ ही वो इबादत होती है। उसके बाद अगर कोई आदमी इबादत करे, उस इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। जैसे रमजान है, वो महीना खास है, वो जमाना खास है कि वो महीना जब आएगा तभी आपके वो उस रुकन की तकमील होगी, रमजान के रोजे पूरे होंगे। अगर कोई इन 30 दिनों में रोजा नहीं रखता, पूरा साल रोजा रखे, तब भी उसे रमजान के रोजों का सवाब नहीं मिलेगा, रमजान के रोजों का सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी जानबूझकर रमजान का रोजा छोड़ दे और उस रमजान के रोजे को तर्क कर दे और बाद में पूरा साल रोजा रखेगा, तब भी पूरा साल रोजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इबादत जमाने के साथ खास है। रमजान आया तभी वो इबादत है, चला गया उसके बाद इबादत नहीं हो सकती है वो। इसीलिए जो इबादतें जमाने के साथ खास है, उस जमाने में आदमी इबादत करे और अपने से किसी जमाने को खास ना करे। जैसे मैं अगर कह दूं कि आप में से हर आदमी असर की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ो ताकि आपको ज्यादा सवाब मिले, असर के बाद नमाज को तय करना ये मेरा इख्तियार नहीं है, मैं उसे तय नहीं कर सकता हूं। जमान के कब आपको इबादत करनी है ये अल्लाह उसके रसूल की तरफ से तय किया जाता है। कोई भी आलिम दीन जमाना खास करके उसे तय नहीं कर सकता है। ये बिदात का बहुत बड़ा रास्ता है कि उम्मत में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने इन उमूर की खिलाफ वर्जी की, जमाने को खास किया। आप फलां वक्त में इबादत करो, फलां वक्त में करो, फलां शक्ल में करो, फलां तरीके में करो, फलां मिकदार में करो, ये अल्लाह उसके रसूल का हक है। जमाना खास है। अगर कोई आदमी 9 तारीख को अरफा के दिन अरफा के मैदान में नहीं होता, उसके बाद वो 11 तारीख से लेके पूरा ज़ुल्हिज्जे का महीना वो अरफात के मैदान में रहेगा, तो उसका हज नहीं होगा, उसका हज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे खास कर दिया है 9 तारीख से। वो जमाना पूरा होना हो, उसी के साथ उसकी इबादत भी पूरी होगी। ये पांचवी चीज है। और छठी चीज है मकान। कुछ शरई इबादतें हैं जो जगहों के साथ खास हैं, जिन जगहों पर ही वो इबादत हो सकती है। जैसे काबतुल्लाह का तवाफ है, तवाफ ये इबादत है लेकिन मकान के साथ खास है, जगह के साथ खास है, उसी जगह वो इबादत हो सकती है। अगर कोई आदमी उसके अलावा किसी जगह को तय करता है इबादत के लिए जिसे शरीयत ने तय नहीं किया है, ये बिदात है, बिदात का रास्ता है। शरीयत ने तय किया काबतुल्लाह है, उसके साथ चक्कर आप लगाए, नफली तवाफ आप करें, और मिना तय है, मुज़दलिफा तय है, अरफात का मैदान तय है। जगहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय कर दिया है, उसके अलावा मैं और आप जगह तय नहीं कर सकते। मैं कहूँ शहर मैसूर की फलां मस्जिद में जाओ, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा उस मस्जिद में जाने से, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जगह तय की गई इबादत के लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। मैं उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूं कि वहां जाओगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। कैसे ज्यादा सवाब मिलेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदें हैं जिनका सफर किया जा सकता है सवाब की नीयत से। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस, ये 3 मस्जिदें हैं जहां सवाब की नीयत से आप सफर करके जा सकते हैं। बकिया दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहां आप सवाब की नीयत से कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगा, इस नीयत से आप सफर नहीं कर सकते। शरीयत ने इन 3 जगहों को खास कर दिया है, लिहाजा अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहीं जा रहे थे, एक आदमी ने उनसे मुलाकात करके कहा कि मैं तूर पर जाकर नमाज पढ़ना चाहता हूं जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की है। अब्दुल्लाह बिन उमर से उसने पूछा, उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां जाकर इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीयत ने जिन जगहों को तय किया है ज्यादा सवाब मिलेगा, वहां आप जाइए। बकिया जहां आपको सहूलत है वहां आप इबादत कीजिए। कहीं जाएंगे तो ज्यादा होगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीयत ने जगहों को भी तय कर दिया है। कुल मिलाकर मेरे भाइयों 6 चीजें हैं, हर शख्स इन 6 चीजों पर गौर करे। सबब, जिस चीज को शरीयत ने सबब बनाया है इबादत के लिए, वही चीज सबब है, कोई और चीज सबब नहीं है। कोई आदमी, कोई बच्चा है दहलीज को पार कर लेता है, अब कोई आदमी कहता है अब सदका करो, अब लोगों को खिलाओ, अब खर्च करो। क्यों? बच्चे ने दहलीज को पार कर लिया है। इस सदके के लिए आप इसे सबब नहीं बना सकते, शरीयत ने उसे सबब नहीं बनाया है। अगर कोई सबब बनाता है उसने इजाफा किया दीन में। आप सदका कभी भी कीजिए, आपने उस चीज के साथ क्यों जोड़ दिया? उसको चीजों के साथ जोड़ने के लिए दलील चाहिए होती है। सबब ने अल्लाह के नबी की पैरवी करना। दूसरा, जिन्स में जिस चीज को तय किया शरीयत ने, उसी चीज
किसके जरिए से इबादत करना, जानवर किसकी कुर्बानी होगी शरीयत में तय किया गया है, वुजू कैसे होगा तय किया गया है, तयम्मुम कैसे होगा तय किया गया है। अपनी तरफ से कोई और जिन्स को आप हम इजाफा नहीं कर सकते। और तीसरी चीज मिकदार है, जिसकी जितनी मिकदार है, जितनी रकातें हैं, जितनी गिनती है, उसी गिनती में उस इबादत को कर लेना है। और चौथी चीज है कैफियत, कि रसूल ने जिस तरीके पर उसे किया है, जो शक्ल में किया वो शक्ल में उसे कर लेना। पांचवी चीज है जमान, जिन जगहों को शरीयत ने इबादत के लिए तय किया है वही जगह इबादत के लिए है, उसके अलावा अपनी तरफ से जगहों को तय नहीं किया जा सकता है। और छठी और आखिरी चीज है जिन जगहों को तय किया गया है उसके अलावा हम अपनी तरफ से जगहों को तय नहीं कर सकते। मेरे भाइयों ये 6 चीजें हैं। उम्मत में इस कदर बिदआत है, इस कदर खुराफात है। अगर कोई इन 6 चीजों को अच्छी तरह समझता है दलाइल की रोशनी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बिदआत से महफूज रखेगा बिइज़्निल्लाह, और उसका ये इल्म उसे बहुत सारे फितनों से नजात का सबब बनेगा। लिहाजा गौर करें। और सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र मोमिन को करना चाहिए, गुनाहों में से एक शिर्क है, अल्लाह के तौहीद के मुकाबले में आता है, दूसरा बिदआत है जो रसूल के इत्तिबा के मुकाबले में आता है। ये 2 सबसे बड़े जुर्म हैं, सबसे खतरनाक बीमारियां हैं। बकिया गुनाह भी इंसान के पास हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो तौबा करेगा, उसे एहसास होगा। लेकिन ये 2 चीजें ऐसी हैं कि इनसे इंसान का अमल बर्बाद हो जाता है। शिर्क से इंसान का पूरा अमल बर्बाद हो जाता है, बिदअत से जो अमल करता है बर्बाद हो जाता है। ये 2 खतरे हैं, आपके तौहीद के साथ शिर्क का खतरा है, आपकी इत्तिबा के साथ बिदअतों का खतरा है। इससे ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार का तकाजा है, आप शिर्क की मारिफत भी हासिल करें, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार का तकाजा है बिदअत की पहचान भी आपके पास हो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी आप अपने समाज में गौर करके देखें, वो बच्चे, वो घराने जो अपने आप को तौहीद पर, सुन्नत पर मानते हैं, उनके गले में तावीजें आपको देखने को मिलेंगी, उनके हाथों में धागे आपको देखने को मिलेंगे। अफसोस होता है कि उनके यहाँ भी ऐसे रस्म रवाज पाए जाते हैं। मौत होने पर कोई रस्म की जाती है, शादियों पर कोई रस्म की जाती है, और अपने आप को तौहीद और सुन्नत पर मानते हैं। जो शख्स अपने हाथ में धागा बांधता है, कड़ा बांधता है, उसने क्या किया, उसने धागे को, कड़े को सबब बनाया है कि इससे मुझे शिफा होगी, जबकि शरीयत ने इसे सबब नहीं बनाया है। धागों से, कपड़ों से शिफा नहीं होती है। इसने अल्लाह के साथ शिर्क भी किया और इसी के साथ उसने दीन में इजाफा भी किया। लिहाजा मेरे भाइयों, इन बिदअत की शनाख्त और पहचान बहुत जरूरी इल्म है, बहुत जरूरी इल्म है। जिस शख्स को अल्लाह शिर्क से बचा ले, जिसे अल्लाह हुआ से, बिदअतों से बचा ले, उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है। इस वजह से सलफ कहते हैं कुबूर फुस्साक़ अहले सुन्ना रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, और अपने का उब्बाद अहले बिदा नारुम मिनन निरान। बात सलफ कहते हैं कि अहले सुन्ना वो लोग जो सुन्नत पर चलते हैं, शिर्क व बिदअत से बचते हैं, उन लोगों की कब्रें जन्नत के बागों में से बाग होती हैं, और जो फुस्सा और वो जो उब्बाद होते हैं अहले बिदअत में से, उनकी कब्र हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन निरान, उनकी कब्रों में आग होती है, क्योंकि सबसे बड़े गुनाहों को उन्होंने इर्तिकाब किया है। अगरचे कि आपको वो गुनाह नजर नहीं आता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है उन्हें नजर आता है। आप तो दाढ़ी और टोपी और चेहरा देखते हैं, लेकिन जिनके पास इल्म है वो देखते हैं कि ये बिदअत ही है, बिदअत पर है, उसके अखलाक में एक धोखा है, उसके अखलाक से वो लोगों को अपनी तरफ माइल करके गुमराह करता है। लेकिन लोग उसे नहीं पहचान सकते। लोगों का मामला ये है कि वो कबायर को पहचानते, गुनाह को पहचानते, बिदअतों को नहीं पहचानते। नतीजा क्या है कि घरों के बच्चे ऐसे लोगों के साथ बाहर निकल रहे हैं गश्त के लिए, जो गुमराह हैं, जो बिदअत पर बाकी हैं। उन्हें लगता है ये भी तो खैर का काम ही है, नमाज ही पढ़ेगा, रोजा ही रखेगा, दुआ भी करेगा। उन्हें नहीं मालूम कि वो बिदअत उसके सारे गुनाहों पर भारी है। जो गुमराही पर वो चलेगा, वो गुमराही उसके सारे गुनाहों पर भारी है। ये कबात हमारे दिलों में नहीं, क्यों? क्योंकि बिदअत की पहचान हमारे पास नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, रसूल की इत्तिबा क्यों करनी है, इसके साथ रसूल की इत्तिबा कैसे करनी है, ये जानना भी जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको, आप सबको शिर्क से, कुफ्र से और हर तरह की बिदअत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हर तरह की गुमराही से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इल्म हमने सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस इल्म से हमें नफ़ा पहुंचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जब तक दुनिया में रखे, ईमान पर रखे, अमल सालेह पर रखे। जहां भी मुसलमान है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, और
جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی میں ان کی مدد فرمائے، اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مددگار ہو، اور ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کا لباس پہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جسم کی صحت دے، ایمان کی صحت دے، اخلاق میں صحت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس نے ہمیں جسموں کے ساتھ یہاں جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایک ساتھ جوڑے توحید اور سنت کی بنیادوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے نفع بخش بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رکھے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ ہم کو بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، اور ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا